SBA Publications. Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing very well in your home. Myself, Sonisati, your mentor. Today, with me, we will start our chapter number 3, that is Computer Peripherals. Computer Peripherals. See, peripherals word means accessories. ये एग्जाम्पल लड़के जल्दी से समझेंगे। जब हम कभी शादी में जाते हैं, लहंगा या शरारा या हमारा सूट जो भी हम पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, then we used to carry some accessories with it like necklace, earrings, मांग टीका and so on. So similarly, computer have also some accessories that are known as peripherals. In the term of technically or electronically, we use peripherals. Peripherals. Okay, so let's understand this chapter more clearly. Now, in this chapter, what we will learn or understand IPO, that is input process output cycle. Input, then processing, then output की cycle जो है हम उसको समझेंगे. Know the various input and output devices. Input devices और output device को जानेंगे and the various processing devices. और जितने भी devices हैं जिनमें से जो जो processing करते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे. So starting with the topic, that is a computer. As we all know, computer is a machine. It is not a human, it's machine. Now a computer is a machine that receives processed data according to the instructions given to it. जैसे आप उस मशीन में इंस्ट्रक्शन देंगे उसी अकॉर्डिंग वो आपका डाटा रिसीव करेगी, डेटा रिसीव करेगी, then it will process the data and then it will give you result as output. Now, and after the data has been processed, the result of the processing are usually sent to an output devices. The input devices for feeding the computer with data and its instructions can be a keyboard, mouse, scanner. The processing of the data is done by the central processing unit, that is CPU, the brain of computer, which is the brain of the computer. The output devices can be screen, monitor, printer, plotter, speakers, ports, etc. सी कंप्यूटर एक मशीन है, उसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तब इनपुट होता है, हमारा डेटा प्रोसेस होता है, देन आउटपुट होता है, और जो हमें आउटपुट में मिलता है रिजल्ट, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट. ठीक है, वो हमारा रिजल्ट है. नेक्स्ट इज कि आपको जो आपका सीपीयू है वो हमारा क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है, ब्रेन है. हमारा जो भी हम डेटा देते हैं, जिनके द्वारा हम डेटा देते हैं, उन्हें हम इनपुट कहते हैं. जिनसे हमारा डेटा हमें शो होता है, वापस आता है, इट्स आउटपुट. See, output is a result. Okay. See here, monitor, printer, plotter, speaker, ports. ये हमारे क्या हैं? Output devices. इनसे हमारे क्या होता है? हमें वापस हमारा डेटा as a result मिलता है. And input devices are like keyboard, mouse, scanner. Okay. So now CPU, that is central processing unit. Processing the data, CPU. Firstly, what we do? Input. We insert the data in the computer, like from keyboard or mouse. Mouse is a pointer, okay, cursor, and keyboard is the device which we use to type the text. Okay, we are inserting the data. Nextly, the processing of the data will start occurring in CPU. Then we will get the output, maybe from monitor or printer. Now here is another thing, that is disk drive, or we can say storage device. See, जो हम प्रोसेसिंग करते हैं उसके लिए हमें डेटा को इन और आउट भी तो करना पड़ेगा ना, लाइक जिसमें भी हमें स्टोरेज हमें इन भी करनी पड़ेगी, आउट भी करनी पड़ेगी. ओके, अगर कोई डेटा सेव प्रोसेसिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा. सी, पहले इनपुट डिवाइस से आया, देन स्टोरेज पे गया, स्टोर हुआ, प्रोसेसिंग हुई, देन
वो बाहर आया एंड देन आउटपुट डिवाइसेस। तो ये हमारी क्या है, नथिंग बट अ IPO cycle. Let's discuss and let's learn about more. Now, input and output devices. Input and output devices को जानते हैं. Input and output devices of a computer system are the or signals after processing it. Examples of these could be your computer monitor, which display the data you have typed from keyboard, and picture you have scanner. See, अगर मैंने कोई डेटा पिक्चर की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में डाला, मतलब अगर टेक्स्ट से डाला तो किससे डाला होगा, कीबोर्ड, इमेज डाली होगी तो किससे डाली होगी, स्कैनर। तो जब हम इंसर्ट करते हैं हमारा डेटा तो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, और जो डिस्प्ले करता है डेटा जो हमने टाइप किया है उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, जो उसमें वो किस पे शो होता है, हमें हमारे मॉनिटर पे शो होता है। ओके, so now computer peripherals, input and output devices are called computer peripherals. See, computer peripherals are nothing but input and output devices of our computer system, as we all know. See, input जिनसे हम इन करते हैं डेटा, ठीक है, डेटा इन करते हैं, लाइक स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, और आउटपुट डिवाइस जिनसे हमें वो डेटा बाहर दिखता है, समझ में आता है, लाइक प्रिंटर, स्पीकर एंड डिस्प्ले, मॉनिटर। Now, computer peripherals को और अच्छे से जानते हैं. These devices allow the computer system to interact with the outside world by moving data into and out of the computer system. Examples of some input devices are: C. Computer peripherals क्या चीज़ में हमें हेल्प करते हैं? It enables to get a connection with the world. Okay. C. हमें अपने सिस्टम से बाहर की चीज़ों पे भी तो ध्यान देना है ना, तो हम वो कैसे करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट से, इनटू करते हैं और आउट टू करते हैं। सी, हमारा डेटा आया और गया, ये हमें क्या करते हैं, कनेक्टिविटी बनाता है हमारे सिस्टम से और हमारे से। इनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा। आई होप आप सभी को सारी चीजें ना पता होगी, क्योंकि हमने सारे चैप्टर्स में इसे पढ़ा है। नाउ एन आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू सेंड डेटा। हमारा आउटपुट डिवाइस क्या होता है, सेंड डेटा के लिए भी यूज होता है आउट ऑफ द सिस्टम। सी, अगर मेरी कोई चीज़ मैंने बना लिया है, डॉक्यूमेंट इन किया, देन मैंने उसको चेंज किया, मॉडिफाई किया, अब मुझे उसे भेजना है, व्हाट आई विल डू, आई विल मेल इट, ओके, आई विल सेंड बाय एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। सी, तो हम सेंड डेटा भी हमारे आउटपुट डिवाइस से ही करते हैं। हमें सिस्टम से बाहर अगर डेटा लाना है तो हम आउटपुट डिवाइसेस ही यूज करेंगे। द यूजर सीज द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बाय द कंप्यूटर थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। जो यूजर होता है वो हमारा जो डेटा होता है उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, उसको किससे देखता है, आउटपुट डिवाइस की हेल्प से। नाउ एग्जांपल्स ऑफ सम आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, plotter and speaker. So now input devices. Let's read more about it. See, first is keyboard. Okay, keyboard. It is the most common and essential input device. बहुत ही ज़्यादा जाना माना है और essential है, important है, ठीक है, हमारे input devices में सबसे ज़्यादा important है। Used for entering data and information into the system by typing. The user can enter data into the company by pressing a set of keys. आप कीज को दबाकर आराम से अपने set of data enter कर सकते हो। In a keyboard, letters are printed on the keys. The first keyboard was developed in the 18th century. क्या कह रहे हैं, आपके जो कीबोर्ड है उसमें आप जो आपके लेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, लेटर्स ABCD अल्फाबेट्स, वो हमारे प्रिंट होते हैं, नंबर्स हमारे प्रिंट होते हैं, हम उन्हें सिंपली टाइप करते हैं, जो टेक्स्ट होता है वो टाइप हो जाता है। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है कि जो आपका कीबोर्ड है फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था, 18th सेंचुरी में डेवलप्ड हुआ था एंड वाज कॉल्ड एज अ QWERTY कीबोर्ड, QWERTY कीबोर्ड। सो हियर इज अ इमेज ऑफ कीबोर्ड। सी, दिस इज द अल्फा न्यूमेरिक पार्ट, जहाँ पे आपके अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स होते हैं, and some function keys are there which are above the keyboard, and multimedia keys like scroll lock, screen lock, और जिसके होते हैं pause break etc, page break,
नाउ स्पेस बार की एंड स्पेशल की। स्पेस बार की जो सबसे बड़ी की होती है वो आपकी स्पेस बार की होती है, एंड द न्यूमेरिक कीज नंबर्स। So let's understand more about it. In general, a computer keyboard has following keys. 3 types of keys: alpha numeric, नाम से ही पता चल रहा है alpha and numeric, that is alpha habits and numericals. These include letters and numbers. इसमें letters और numbers होते हैं. Symbol keys, these include comma, period, semicolon और etc. See, symbol से ही पता चल रहा है, इसमें symbols के बारे में बात की जाती है. Now special keys. Special keys मतलब कुछ special काम होता है जिनसे. These can be function keys, ये function keys हो सकते हैं, control keys, arrow keys, caps lock, etc. जो हम instructions देते हैं ना, वो हम function keys, control key इनकी ही help से देते हैं. इनका भी participation होता है हमारे functions को enter करने के लिए. Now mouse. The second most common input device is mouse. A mouse is a handy device. हाथ से आप इसे पकड़ते हैं, मतलब हाथ का डिवाइस होता है ये, which can be moved on a smooth surface. Smooth surface पे ये move करता है to cause the movement of a cursor on the screen. जो इसका पॉइंटर होता है, कर्सर होता है, वो स्क्रीन पे मूव करता है by just moving this handy device which is known as mouse. It is a pointing device which is used to input data and information into the computer system by pointing on it. आपको जो भी एंटर करना है डेटा उसके काम आता है ये. हेल्प क्या करता है? बाय पॉइंटिंग ऑन इट. कहीं भी आपको पॉइंट करना हो, ओपन करना हो तो ये करता है. नाउ द पॉइंटर ऑफ द माउस मूव्स इन द सेम डायरेक्शन. जो पॉइंटर है आपका वो कहाँ पे मूव होता है? सेम डायरेक्शन में मूव होता है जो भी हमारी माउस बॉल रोल होती है. ओके, सो यहाँ पे आपको ना बता रखा है कि क्या क्या चीज़ होती है. सी, ये आपका माउस है, ये आपको ना प्लास्टिक कवर दे रखा है. सी, यहाँ का आपका क्या हुआ? ये लेफ्ट बटन, ये हुआ आपका राइट बटन. जब मैं कहूँगी लेफ्ट क्लिक तो समझ जाना आपको अपनी फर्स्ट फिंगर से करना है. राइट बटन सेकंड फिंगर का क्लिक करना है. देन दिस इज योर माउस पैड जहाँ पे आप इसको मूव करते हैं. ये आपका प्लास्टिक कवर दे रखा है एंड इट्स अ स्क्रॉल व्हील. बीच बीच का जो आपका पार्ट होता है माउस का उसे हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं, जिसे हम स्क्रॉल करते हैं. Types of mouse. Mouse could be mechanical, optical, cordless type. Further information regarding these types are as follow. See, जो हमारे माउस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. पहले तो नॉर्मली होता था वायर वाला, बट अब और तरह के भी आने लग गए हैं. जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है वैसे ही हमारे न्यू डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं. सो फर्स्ट इज मैकेनिकल माउस, जो कि नॉर्मली यूज करते हैं. Uses ball for the movement of cursor on the computer screen. When the ball is rolled in any direction, a sensor of mouse detects it and also moves the mouse pointer in the same direction in your screen. Now, optical mouse. See, mechanical mouse को क्या बताया? जो आपकी बॉल होती है माउस की, जो आपकी नीचे माउस के नीचे होती है, वो डिटेक्ट करती है कि किस साइड हम मूव कर रहे हैं, उसी साइड पे उसी डायरेक्शन में मूव करती है, हमारी स्क्रीन पे शो होता है. नाउ ऑप्टिकल माउस, इट यूजेस लेजर रेज. ऑप्टिकल माउस में क्या होता है? हमारे लेजर रेज का काम होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. इट इज एन एडवांस्ड पॉइंटिंग डिवाइस. ये आज को मतलब एडवांस्ड लेवल का है. ओके, मूवमेंट इज डिटेक्टेड बाय सेंसिंग चेंजेस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट rather than the motion of a rolling sphere. सी, रोलिंग स्फेयर को ना होकर यहाँ पे क्या होती है? आपकी लेजर बीम्स, लेजर लाइट जो होती है ना, उनकी हेल्प से आप स्क्रीन पे पॉइंट करते हो, रिफ्लेक्ट होती है और आपका जो आपके माउस है वहाँ पे आपका पॉइंटर चेंज होने लगता है. सी, जैसे आपने माउस मतलब आपने अपना रेज वाला माउस यूज किया, ऑप्टिकल माउस यूज किया, सो इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द स्क्रीन एंड देन द पॉइंटर विल ऑल्सो चेंज इन द सेम डायरेक्शन बाय just changing the direction of your mouse. Okay, next is cordless mouse. It is a battery driven and does not need any wire or the physical connection with the CPU. अब ये वाला जो होता है cordless mouse, cordless, cord क्या होती है? तारे, connection, okay, wires. So wireless mouse भी कहते हैं इनको. हाँ, ये आपके किससे कनेक्ट होते हैं? ब्लूटूथ से हो सकते हैं, इंफ्रारेड से हो सकते हैं. ठीक है, आपके ये कनेक्ट होते हैं माउस
आपके सिस्टम से, या आपको सीपीयू की हेल्प नहीं चाहिए होती है, किसी वायर की हेल्प नहीं चाहिए होती है इसे कनेक्ट करने के लिए. इट ट्रांसमिट्स द डेटा थ्रू इंफ्रारेड और रेडियो सिग्नल. कंप्यूटर माइस आर वेरी यूजफुल इन डिजाइनिंग पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड वीडियो गेम्स बाय मल्टीमीडिया डिजाइनर्स. जो मल्टीमीडिया डिजाइनर्स होते हैं, जो मतलब मास मीडिया डिजाइनर्स होते हैं, ये सब चीजें तो वो इनका ज्यादातर यूज करते हैं. A mouse pad is required to move the mouse because it provides a smooth surface. अब आपको इसमें smooth surface, that is your mouse pad, आपको इसकी need होती है. Now, however, an optical or laser mouse does not require a mouse pad. See, आपका जो cordless mouse है उसके लिए भी आपको mouse pad की required है, और जो आपका normal mouse है, that is a mechanical mouse, उसके लिए भी आपको अपना mouse pad की requirement है, but optical के लिए नहीं है, क्योंकि वो एक आपकी लेजर बीम पे डिपेंडेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस इज टैबलेट. इट इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट allows one to hand draw images, graphics similar to the way one draws images with a pencil and a paper. See, आप जैसे पेंसिल और पेपर की हेल्प से इमेजेस ड्रॉ करते हो, ऐसे ही कुछ आर्किटेक्ट्स या इंजीनियर्स होते हैं जिनके फील्ड में उनको ड्राइंग करनी पड़ती है. सो वो टैबलेट्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पेपर और पेंसिल टू ड्रॉ. सो दीज आर यूज्ड बाय आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दैट इज CAD, फॉर डिजाइनिंग बिल्डिंग्स, कार्स, मैकेनिकल पार्ट्स, रोबोट्स एटसेट्रा. These are also used in global positioning system, GPS, for digitalizing of map. GPS जो हम देखते हैं ना, कभी हम किसी कैब में जाते हैं तो हमें दिखता है कि ड्राइवर कहाँ से देख रहा है मैप, GPS से. सो आपके GPS में भी यूज होता है आपका टैबलेट. नाउ joystick. It is a remote control device for a computer which is used for playing video games to indicate the position. It has a stick that pivots on a base and is used for controlling the action in video games. Joysticks are also used for controlling machines such as cranes, trucks, underwater, unmanned vehicles, flights, simulators, industrial robots, etc. See, जो आपकी joystick होती है वो besides instead of using in gaming, हम उसे कहाँ यूज करते हैं, हम अपने मशीन के कंट्रोल में करते हैं, इवन एयरक्राफ्ट्स में, ठीक है, आपके क्रेन्स में, ट्रक्स में, अंडर वाटर जो आपके लोग जाते हैं, अनमैन्ड व्हीकल्स में. ओके, सो आपका जॉयस्टिक अभी तक हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ वीडियो गेम्स में यूज होता है, बट वीडियो गेम्स में ना होकर इस चीज में भी होता है. इसमें क्या होता है, आपका एक पहले बेस होता है, फिर आपका एक वर्टिकल स्टैंडर्ड, आपका एक पेन होता है, आपका एक एरिया होता है जिसमें आप उसे क्लिक करते हो, आप जिस डायरेक्शन में मूव करते हो उसी डायरेक्शन में आपका पॉइंटर मूव होता है in the screen. Now light pen. See, a light pen is pen-like structure, pen-like light sensitive device. It is connected by a wire to the computer terminal to detect the CRT, cathode ray tube beam as an input signal. See, light pen आपके जो CRT होते हैं, cathode ray tube वाले जो आपकी भी मॉनिटर्स होते हैं उन पे यूज होता है. ठीक है, आपका डिटेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, टच करने के लिए. नाउ cathode ray tube beams as an input signal. It is used to draw on the screen or to pointer on the displayed object. अब लाइट पेन में क्या होता है, लाइट्स निकलती है, बीम निकलती है, ठीक है, which are cathode ray. ओके, सो कैथोड रे निकलती है, इसलिए आप सिर्फ उसे कैथोड रे ट्यूब पे ही यूज कर सकते हो. A light pen can work with any CRT monitor but not with LCD. CRT जितने भी टीवी होंगे, आपके जितने भी मॉनिटर होंगे उनमें वो यूज होगा, बट LCD में यूज नहीं होगा. Monitors, it is used by architecture, engineers, CAD application and editing. ओके, सो आप इसमें CAD की एप्लीकेशन, एडिटिंग, आर्किटेक्ट और जो इंजीनियर्स होते हैं उसे वो भी इसे यूज करते हैं. नाउ touch screens. Touch screens are monitor electronic visual display screens which detect where they are being touched. Touch screen क्या होते हैं, जिन पे भी आप टच करते हो डिटेक्ट करते हैं और फिर आपकी स्क्रीन पे
आपका जो भी आपका काम होता है वो होने लगता है. सी, आप जो भी पॉइंटर की beside using a pointer we are using our finger to just touch and put the command, so which detect where they are being touched. Now digital camera. Okay, now digital camera क्या होता है? A digital camera is an electronic device which takes video or still images or photographs or both digitally by recording images. These cameras use memory cards with फ्लैश मेमोरी टू स्टोर इमेजेस. ये आपके मेमोरी कार्ड्स पे डिपेंडेंट होते हैं. इनके लिए स्टोरेज डिवाइसेस मेमोरी कार्ड होता है. ओके, और इसमें हम क्या करते हैं? वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इमेजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं. नाउ स्कैनर. इट इज एन इनपुट डिवाइस. व्हाई इट इज एन इनपुट डिवाइस? क्योंकि स्कैनर से हम इमेज स्कैन करके अपने सिस्टम में ला सकते हैं. ओके, and is used to input data into the computer system in the form of pictures. It optically scans images, printed text, handwriting, or an object and convert it to a digital image. Examples of the scanner are a desktop or a flatbed scanner. तो आपके जो स्कैनर्स में क्या होता है? आप इमेजेस बना सकते हो, डिजिटल इमेजेस जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में एंटर कर सकते हो. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैनर है यहाँ पे डेस्कटॉप एंड फ्लैटबेड स्कैनर. इन दीज स्कैनर्स द डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास विंडो. फॉर स्कैनिंग अनदर टाइप ऑफ स्कैनर इज अ प्लैनेटरी स्कैनर. 3-dimensional स्कैनर आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 3-dimensional मॉडल्स ऑफ द प्रोजेक्ट. आजकल 3D वाले भी आ गए हैं, बट जो सिंपली हमारे होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. ठीक है, पहला आपका डेस्कटॉप वाला एंड देन फ्लैट बेड वाला. इमेज दे रखी है आपको पे फ्लैट बेड वाले की, जिसमें आपको पहले बताया गया कि ग्लास जहाँ पे आप पेपर रखते हैं. ठीक है, ये आपका ग्लास है, उस पर हमने पेपर रखा है एंड इट्स अ कवर, और आपकी इमेज स्कैन हो जाएगी. नाउ बारकोड रीडर. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू रीड प्रिंटेड बारकोड्स. अब बारकोड्स क्या होते हैं? बारकोड्स रिप्रेजेंट alphanumeric data which is combination of vertical lines that is known as bars that vary in width and length. आपकी different width और different length की different kind of lines होती है जिनको हमें decode करना पड़ता है to get information. So it is a fast and effective way to input data. अब इसमें क्या होता है? जो हमारा decode करके डेटा आपका एक छोटे से मैनर में सेव हो जाता है. अब आप जैसे बारकोड से आप उसको स्कैन करोगे तो आपको सारा डेटा दिख जाएगा. ये आपका सबसे फास्ट और इफेक्टिव वे होता है डेटा को इनपुट करने का. A barcode reader uses a laser beam to read the series of thick and thin lines which represent the barcode number. अब कैसे रिप्रेजेंट होता है? थिक एंड थिन लाइन से. The barcode is 13 digit long. बारकोड आपका 13 डिजिट लॉन्ग होता है and it has 4 main divisions. और आपके बारकोड में 4 main divisions होती है. Now next topic is output devices. Monitor. It is the device which displays computer output. The monitor displays the video and graphics information generated by the computer. See, आपने input किया, enter किया डेटा, CPU ने उसे प्रोसेस किया, स्टोरेज डिवाइसेस ने उसको टेम्परेरी परमानेंटली स्टोर किया. नाउ आउटपुट आया. सो आउटपुट आया तो आउटपुट डिस्प्ले कर मॉनिटर क्या होता है? हमारा डिस्प्ले करता है वीडियोस एंड ग्राफिक्स. ये हमारा आउटपुट डिवाइसेस है. फर्स्ट और मोस्ट कॉमन इट इज वेरी नेसेसरी. ओके, जनरेटेड बाय द कंप्यूटर थ्रू द वीडियो कार्ड. Monitors are very similar to television but usually display information at the much higher resolution. See, ये आपकी टीवी की तरह ही होते हैं बट इसमें हमारे लॉजिकल, अरिथमेटिक और हमारी हायर इंफॉर्मेशन होती है besides of TV serials or images. Now, types of monitors. See, cathode ray tube, that is CRT, liquid crystal display, that is LCD, and the light emitting diode, LED. ये आपकी मॉनिटर्स के टाइप्स हैं, LED, LCD and CRT. इनको अच्छे से जानेंगे by images. C. First is CRT, cathode ray tube.
डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। सी ये ऐसा होता है, ठीक है, लार्ज होता है, हैवी होता है, ठीक है, ज़्यादा यूज करने पे हीट प्रोड्यूस करता है एंड एक्सपेंसिव नहीं होता है, चीप होता है। ओके, नाउ एलसीडी स्पेस कम लेता है आपके एज कंपेयर टू आपका सीआरटी, लाइटर होता है, लो पावर कंजप्शन होती है, बट एक्सपेंसिव होता है, लिमिटेड व्यूइंग एंगल, इसका एक व्यूइंग एंगल लिमिटेड होता है। नाउ लेस स्पेस, ये आपका लाइट इमिटेड का है, ठीक है, एलईडी का बता रहे हैं। ओके, लाइट लेस स्पेस होता है, लाइटर होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, प्रोवाइड हायर कॉन्ट्रास्ट एंड बेटर व्यूइंग एंगल्स देन एलसीडी, एलसीडी से भी ज्यादा आपके एंगल्स होते हैं इसको देखने के लिए। नाउ प्रिंटर, it is an external hardware device responsible for generating a hard copy of data. Printers are one of the most used peripherals on a computer and are commonly used to print text, images and photos. प्रिंटर से पता चलता है हम इससे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ओके, जो भी आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर है, ठीक है, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जनरेशन की, एक हार्ड कॉपी की, आपको एक हार्ड कॉपी जनरेट करना है। ओके, सो आप क्या करेंगे, प्रिंटर की हेल्प लेंगे। ओके, हर जगह आप मेलिंग और ऑनलाइन तो नहीं कर सकते, तो ऑफलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं। किसकी हेल्प से, प्रिंटर की हेल्प से। हम उससे टेक्स्ट निकाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं, इमेजेस एंड फोटोज निकाल सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, इट स्ट्राइक्स पेपर एंड रिबन टुगेदर टू इन्फॉर्म अ कैरेक्टर लाइक टाइपराइटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, आपके पेपर के साथ डायरेक्टली स्ट्राइक करता है, ठीक है, और आपकी इंक इसमें जाती है एंड देन आपको इमेज या फिर आपको जो भी आपका टेक्स्ट है वो प्रिंट होकर आता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, कैन मेक मल्टीपल कॉपीज, ये मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस है, नॉइजी, बनाते समय खटपट करता है, प्रिंट लो क्वालिटी समटाइम, कई बार जैसे इनकम होती है तो ये क्या करता है, लो क्वालिटी में करता है, पुअर ग्राफिक्स और नॉन नेटवर्क एंड स्लो, तो इसकी ऑल एवरेज क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। नाउ एग्जांपल इसके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इट प्रिंट्स द इमेजेस एंड टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइनी डॉट्स, दिस प्रिंटर प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये आपके सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही निकालते हैं इमेजेस, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और ये इमेजेस कैसे निकालते हैं, टाइनी डॉट्स से, टाइनी डॉट्स मिलते हैं तब जाके ये इमेज बनाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, अभी आपका सेकेंड टाइप है प्रिंटर का, इट यूजेस इंक स्प्रे, टोन पाउडर एंड और इंकलेस, कभी कभी ये इंक से भी होता है, कभी कभी ये टोनर पाउडर से भी होता है और इंकलेस भी होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, क्वाइट रहता है, आराम से आपको शांति से निकल जाएगा, कैन हैंडल ग्राफिक्स एंड ऑफर a wider variety of fonts that impact printer, fast, ठीक है, ये सब आप इसकी एडवांटेजेस हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस, मोर एक्सपेंसिव, ओके, इम्पैक्ट से भी मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ये, ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज हाई, अगर एक बार खराब हो गया तो इसको सही कराने के लिए भी बहुत पैसा देना पड़ता है, कंज्यूम्स मोर इंक आपकी ज़्यादा कंज्यूम करता है। इसके एग्जाम्पल है laser printer, toner based, okay, a laser printer rapidly produce high quality text and graphics. Laser printers are often used in corporate, school and other places that require print jobs to be completed quickly and in large quantities. ये आपके कहाँ यूज होते हैं, जब आपको लार्ज क्वांटिटी में और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी प्रिंटिंग चाहिए। नाउ मल्टी फंक्शन प्रिंटर, that is toner based. It is an office machine which incorporates the functionality of multiple devices in one. A typical multifunctional printer may act as a combination of some or all of the following devices. See, आपके जो प्रिंटर, फोटोकॉपियर, स्कैनर और फैक्स हैं, इन सब का ही एक साथ एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं मल्टी फंक्शन प्रिंटर। ओके, मल्टी फंक्शन से पता चल रहा है ये डिफरेंट फंक्शंस को एक साथ करता है। ओके, तो आपको इसमें अलग से प्रिंटर, फोटोकॉपी के लिए अलग मशीन, फैक्स के लिए अलग मशीन, स्कैनर के लिए अलग मशीन ना लेकर आप नॉर्मली मल्टी फंक्शन प्रिंटर लेंगे तो आपका सब अपने आप हो जाएगा। लास्ट इज इंकजेट प्रिंटर, इट ऑपरेट्स बाय
propelling variably sized droplets of liquid or molten material ink onto almost at a size page. They are the most common type of computer printer used by consumer. इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इसमें आपकी इंक एक रिफल लगती है जो आपके पेपर पे इंक फेंक कर उस पर प्रिंट करवाती है. ओके, ये आजकल का मोस्ट कॉमन है. ओके, डिफरेंट कलर्स होते हैं इसमें, आप डिफरेंट इमेजेस बना सकते हो. ठीक है, पर्टिकुलर क्वालिटी वाइज बेस्ट होता है और आज की डेट में सबको इजी के लिए चाहिए तो ये मल्टी फंक्शन में आता है. नाउ प्लॉटर. It is a computer printer for printing vectors graphics. Plotters are used in applications such as computer-aided design to draw diagrams, layouts, specification sheets, and banners. See, plotter क्या है? Kind of printer है, but printer नहीं है. इसमें हम क्या करते हैं? बिग साइज की, ओके, हाई क्वालिटी की, लो क्वालिटीज की बैनर्स, टेम्पलेट्स बनाते हैं. ओके, सो द प्लॉटर्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कलर ड्राइंग्स इन अ फ्यू मिनट्स. कुछ ही मिनट्स में ये आपके कलर ड्राइंग करते हैं. इट डिफर्स फ्रॉम प्रिंटर एज इट ड्रॉस लाइन यूजिंग अ पेन. यह आपके एक पेन की तरह ड्राइंग करने की, जैसे आप पेन से ड्राइंग करते हैं ना, उसी की तरह आप सिमिलरली ड्राइंग कर सकते हो. ठीक है, आप जैसे आप पेन की यूजिंग से आप ड्राइंग करते हो तो प्रिंटर इससे थोड़ा सा डिफरेंट करता है. क्या करता है? आपको अगर आपको कोई बैनर बनाना है, ठीक है, आपको पोस्टर बनाना है, स्कूल में पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स उनके यूज करते थे, बट वो आपको सेम बना देगा, बट वो आपका ऐसी चीजें यूज नहीं करता है. ठीक है, इंक यूज कर आपको सेम पोस्टर बना के दे देता है. प्लॉटर्स आर कंसिडरेबली मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर्स. प्रिंटर से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं आपके प्लॉटर्स. प्लॉटर्स आर टू टाइप्स, drum plotter and flatbed plotter. Okay, a drum plotter is also known as roller plotter and a flatbed plotter it also known as table plotter. जो आपका ड्रम प्लॉटर होता है, रोलर प्लॉटर भी कहते हैं इसे, टेबल प्लॉटर में भी होता है क्योंकि इसको बिठाकर अच्छे से करना पड़ता है. ये रोल करता है, देन ये आपको इमेज देता है. एंड नेक्स्ट सेकंड इज फ्लैटब्लेड प्लॉटर. सी दिस वन. ओके, सो नाउ स्पीकर्स. Speakers are hardware devices connected to a computer that produces sounds generated by the computer. आउटपुट में आपके अगर कोई साउंड है, ये वो जनरेट करता है, वो आपको सुनाता है. नेक्स्ट, स्पीकर कैन बी यूज्ड टू हियर वेरियस साउंड्स, मीन टू अलर्ट द यूजर एज वेल एज म्यूजिक एंड स्पोकन टेक्स्ट. आपको अलर्ट करने के लिए अलर्ट मैसेज के साथ, एरर मैसेज के साथ जो भी आपको साउंड आती है ना, वो भी आपका स्पीकर ही काम करता है. नेक्स्ट इज हेडफोन. हेडफोन्स गिव साउंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. आपका ये भी आउटपुट डिवाइस में है. कंप्यूटर के आउटपुट जो भी साउंड होगी आप उसे सुन सकते हैं. दे आर सिमिलर टू स्पीकर्स बट दे आर वॉर्न ऑन द ईयर, सो ओनली वन पर्सन कैन हियर द आउटपुट एट अ टाइम. ये क्या है? नथिंग बट स्पीकर, बट इनको एक टाइम पे एक ही बंदा यूज करता है और सिर्फ वही बंदा, पर्टिकुलर बंदा ही उन्हें सुन सकता है उस साउंड को. Next is projector. It is an output device that can take the display of a computer screen and project a large version of it onto a flat surface. See, projector क्या होता है? आपकी जो भी आपको स्क्रीन चाहिए, एक यहाँ पे कर्टेन लगा देते हैं, व्हाइट कर्टेन, उस पर आपकी स्क्रीन बीम्स आती हैं, आपकी लाइट बीम्स आती है और वो आपको डिस्प्ले करती हैं. ठीक है, ये आपका इस तरीके का डब्बा होता है जो आपका प्रोजेक्टर होता है. Projectors are often used in meetings and presentation. ये meetings और presentations में आता है. आजकल की जो स्मार्ट क्लास होती है उसमें होता है. So that everyone in the room can view the presentation. ये large amount of people, large peoples को एक साथ दिखाने के काम आता है. Okay. Now here is an activity for you. Put these devices in the correct column. Input and output devices. Now key points. Keyword. See, computer works by taking input, processing it, giving output. That is IPO cycle. This is known as the input process output IPO cycle of a computer. Now, an input device is used to receive data or instructions from the user. Input device user से instructions लेने के लिए काम आता है. The CPU processes the input provided by the user and output devices is used to display the result of
प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग. कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन are input devices. CPU, RAM, motherboard, hard disk are the components of processing unit, that is CPU. Monitor, printer, plotter are the output devices. All input and output devices together are called computer peripherals. By this, we have completed this chapter. I hope you like this video and all the concepts of this chapter are totally clear. Let's meet you in the next video. Till then, keep learning. Bye.